Jacob had been traveling for days through the wilderness to reach Haran, where his mother's brother was. Finally, he reached an open space where sheep were grazing. There was a well with a large stone closing its mouth. Shepherds were herding their flock there. Jacob wanted to know where he was, and so he went on to one of the shepherds and spoke to them. Hello. Where are you from? We are from Haran. We bring our sheep here to give them water from the well. Do you know of a man named Laban from Haran? Yes, we do know him. In fact, that is his daughter coming here right now. Are you the daughter of Laban? Yes, I am Rachel, the daughter of Laban. Who are you? I am Jacob, the son of Rebekah, your father's sister. And I'm so happy to see you. That's wonderful! You are Rachel's son? My father would be so happy to see you. Let me go and give him this news. Very well. I will wait here. Rachel gave water to her sheep and went back to her home to give her father the news. Father, I have great news for you. What is it, my dear? Your sister's son, Jacob, is here in Haran. He has come all the way from Beersheba to see you. That is wonderful news, Rachel. Let me go and bring him home. Laban went to meet Jacob and embraced him in joy. He was extremely happy to see his sister's son, as they had never met before. As they walked back to Laban's house, Jacob told Laban about everything that was happening, about Rebekah, Laban's sister, his father Isaac, and how he had made the journey to Haran. You are indeed my sister's son. Stay with me in my house for as long as you may like. And so, Jacob stayed at Laban's house and worked with him on his fields and helped with tending the sheep for a month. After a month, Laban spoke to him. Jacob, my boy, just because you are my relative, it doesn't mean that you do not need to be paid. Ask me what you want in wages, and we will have an arrangement. Laban had 2 daughters. The elder was Leah, and the younger one was Rachel. Rachel was very beautiful, and Jacob had fallen in love with her. I would like to marry your younger daughter, Rachel. And for her, I will work with you for 7 years. I'm happy to hear you love my daughter, Jacob. I would gladly marry her to you. So stay here and work with me. So, Jacob worked for Laban for 7 years in Haran. He loved Rachel very much, and so he didn't find it difficult to work for Laban. At the end of the 7 years, Jacob spoke to Laban. Laban, I have worked for you for 7 years. Now give me your daughter as my wife, as our agreement. Very well, Jacob. You have served me well. Let's have a feast in celebration of your marriage. And so, Laban held a big feast at his home and invited many guests for the marriage of his daughter. However, Laban tricked Jacob by sending his elder daughter Leah with a veil covering her face to be married to Jacob. He also sent a maid by the name of Zilpah as Leah's maid with them. In the morning, Jacob realized he had been tricked, as he did not know it was Leah that was married to him and not Rachel. Jacob was angry. He went to Laban and spoke to him. Why did you trick me, Laban? I served you for 7 years. And this is how you repay me? You tricked me by sending your elder daughter Leah instead of Rachel. Why did you cheat me? Tell me, Laban, speak to me. Jacob, my boy, do not be angry. It is not the custom of our land to marry the younger daughter when the elder daughter is unmarried.
I will marry Rachel to you after a week, and then you can serve me for another 7 years. This is my request to you. And so Jacob married Rachel after a week. Laban also sent another maidservant named Della to help Rachel. Jacob served Laban for another 7 years. He loved Rachel very much, more than Leah. Later on, Leah gave birth to 4 sons, while Rachel did not have any children with Jacob. पारिवारिक सप्ताह के चौथे दिन में आपका स्वागत करते हैं। आशा है और विश्वास है कि पिछले दिनों के पवित्र वचन से आप लाभान्वित हो रहे हैं। आज के ठहराए हुए वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपके जीवित वचन से थोड़ी देर मनन चिंतन करना चाहते हैं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई हमें दीजिए, ताकि प्रभु परमेश्वर आपके जीवित वचन को सुनने, समझने और उसके अनुसार चलने के लिए आप हमारे सहायता और अगुवाई मदद कर। आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। आज का ठहराया हुआ वचन है उत्पत्ति 29 अध्याय पहले पद से अंतिम पद तक। इसमें याकूब और राहेल के बारे में लिखा हुआ है। याकूब जब एसाव के डर से अपने मामा लाबान के यहाँ आता है और आकर के लाबान के भेड़ बकरियों को चराता है, तब राहेल को वो देखता है और उससे विवाह करना चाहता है। तब उसके मामा लाबान के पास जाता है और कहता है कि राहेल से विवाह करना चाहता हूँ। तब उसका मामा लाबान कहता है कि 7 साल भेड़ बकरियों को चराना होगा, तभी तुम राहेल से विवाह कर सकते हो। तब याकूब लाबान का भेड़ बकरियों को 7 साल चराता है। जब 7 साल पूरा होता है, तब लाबान से कहता है कि राहेल से मैं विवाह करना चाहता हूँ। तब लाबान धोखे से राहेल के बदले उसकी दीदी लिया को याकूब से विवाह कर देता है। जब याकूब को पता चलता है कि ये धोखा हुआ है, तो फिर लाबान के पास जाता है और कहता है कि मैं राहेल से विवाह करना चाहता हूँ। तब लाबान कहता है फिर से 7 साल मेरे भेड़ बकरियों को चराना होगा, तब ही राहेल से विवाह हो सकती है। तब याकूब वो पीछे नहीं हटा, न कमजोर पड़ा और न हताश हुआ, बल्कि फिर से 7 साल भेड़ बकरियों को चराने के लिए तैयार हो गया और फिर राहेल के लिए 7 साल भेड़ बकरियों को चराता है और फिर अंत में लाबान के पास आकर कहता है मैं राहेल से विवाह करना चाहता हूँ। तब लाबान राहेल को याकूब से विवाह कर देते हैं। इस घटना को परिवार से संबोधित करना चाहती हूँ। परिवार जब परमेश्वर की ओर आगे बढ़ता है
परमेश्वर के वचनों को जानना चाहता है, परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहता है, परमेश्वर से संबंध बनाना चाहता है, तब शैतान परिवार और परमेश्वर के बीच में फूट डालता है। हम देखेंगे गलतियों 5 अध्याय 19, 20, 21 पद में संसारिक बुरे काम, इन सभी कामों के द्वारा से परिवार में फूट डालता है। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें सचेत रहना है। पहला पतरस 5वां अध्याय 8 पद में लिखता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस समय जब शैतान परिवार में जब फूट डालता है, तब हम कभी कमजोर ना पड़े, कभी हताश ना हुए, कभी पीछे ना हटे, कभी उनसे ना डरे, बल्कि परमेश्वर के नज़दीक में हम जाएं। परमेश्वर के नज़दीक में जाने के लिए कुछ निम्नलिखित बातों को बताना चाहती हूँ। पहला है, परिवार में पवित्र वचन का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है, एक साथ परिवार में परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। तीसरी बात है, परिवार का चाल चलन का ध्यान रखना चाहिए। और चौथी बात है, आपस में सहनशीलता होनी चाहिए। पांचवी बात है, परिवार में मेल मिलाप होनी चाहिए, तभी परमेश्वर हमें आशीष देंगे। परमेश्वर हमें किस तरह का आशीष देना चाहते हैं, हम देखेंगे। भजन संहिता 128 अध्याय 1 पद से अंतिम पद तक। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। जब परिवार परमेश्वर के नज़दीक में रहता है, परमेश्वर की संगति में रहता है, उसके पवित्रता में बने रहता है, तब भजन 128 में जो आशीषें लिखी हुई है, वो आशीषें हमें परिवार में मिलेगी। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपके जीवित वचनों से मनन चिंतन किए। प्रभु परमेश्वर, परिवार में आपका अगुवाई चाहते हैं, हर परिवार में आपका उपस्थिति चाहते हैं, हर परिवार में आपका भय, आपका डर चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, हर एक परिवार आपका डर भय में बने रहने पाए, ताकि परिवार में प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। हर एक परिवार में जितने भी सदस्य लोग रहते हैं, सभी सदस्यों को अपनी पवित्रता में आगे बढ़ाइए, ताकि परिवार आपका परिवार कहलाने पाए, मसीही परिवार कहलाने पाए और दूसरों के सामने गवाही के लिए खड़े होने पाए। प्रभु परमेश्वर, तो हर एक परिवार को अपने दाहिने में हाथों से उठा लीजिए, ताकि प्रभु परमेश्वर हर एक परिवार आपके छत्र छाया में बने रहने पाए। हर एक परिवार को तो आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए,
दया दिखाइए। यह प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।